Hello everyone. Let us start with the pending questions of exercise 8.3. We are done till third question. Today we will be completing the fourth question, which is the most comprehensive question. This entire question is based on the concept of trigonometric identities. In your syllabus, you have three trigonometric identities, that is cos square A plus sin square A is equal to 1, cos square A plus sin square A is equal to 1 plus tan square A is equal to sec square A, and cot square A plus 1 is equal to cosec square A. Now, using these three trigonometric identities, we will be solving the fourth question of exercise 8.3. Let's start. Before we start the question, let me guide you on how to go about this topic. So, the basic fundamental rule in solving the identities is to simplify to the best extent possible. Whenever you see a question and you are not able to figure out that what you have to do, the first basic step is to write the entire expression in terms of sine and cos. If you can write the entire expression in terms of sine and cos, then using some permutation combination आपने LCM ले लिया, रेशियो ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आपने rationalize कर दिया, using some basic permutation and combination, you can reach to some conclusion. So your first step is to always simplify the terms in the ratio in the way of cos and sine. आप उसको cos and sine के terms में लिख दो. Let's start. Exercise 8.3, question number 4, first part. Cosec theta minus cot theta whole square. This is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Now, what is the LHS in this case? LHS is cosec theta minus cot theta whole square, right? Now, this can be written as 1 by sine theta minus cos theta by sine theta. I've just written the expression in terms of sine and cos. Now, this is 1 minus cos theta whole square divided by sine square theta, right? Now, I know that there is an identity where I have sine square theta, that is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So, sine square theta is 1 minus cos square theta. 1 by 1 minus cos theta whole square divided by 1 minus cos square theta. Now, 1 minus cos square theta can be written as 1 minus cos theta into 1 plus cos theta using the identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. 1 minus cos theta whole square, 1 minus cos theta into 1 plus cos theta using the identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So 1 minus cos theta gets cancelled with this 2. So you get 1 minus cos theta by 1 plus cos theta, which is your RHS. So hence proved. So in this question, what did we do? We took the LHS, we wrote the expression in terms of sine and cos, we simplified it, then we used the identity a square minus b square, and then we got our RHS. So this is how you solve the questions of trigonometric identities. Let us go to the second question. Second question is an important question. Please mark it. It is seen in exams frequently. Cos A plus 1 by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos is equal to 2 sec A. So we need to prove that cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A is equal to 2 sec A. Now in this question, you can clearly see that that in the LHS, numerator by denominator plus denominator by numerator. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर इनकी वैल्यू सेम है. जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उस तरफ उसका रेसिप्रोकल है. सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम. सो वी गेट कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए एंड ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर. दिस इज my LHS, right? Now, can I expand 1 plus sine a whole square? Yes, I can. So this will be 1 plus sine square a plus 2 sine a divided by cos a into 1 plus
sin a. Now you can see that cos square a plus sin square a, this is equal to 1. So 1 plus 1 plus 2 sin a. This is equal to cos a upon cos a. So this will be 2 plus 2 sin a पे 1 plus sin a रह गया डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 plus sin a. ऊपर अगर मैंने 2 कॉमन लिया सो आई गेट 1 plus sin a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 plus sin a. तो 1 plus sin a 1 plus sin a आपका कट गया. तो दिस इज 2 by cos a. दिस इज 2 by sec a. 2 sec a. बिकॉज 1 by cos को हमने लिख दिया sec a. सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन. आपने क्या किया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर था, अगली टर्म क्या थी, डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, उल्टा हो गया था, रेसिप्रोकल था. तो आपने एलसीएम ले लिया. एलसीएम ले लिया तो आपके पास cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर आ गया. नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 प्लस साइन ए को खोल दिया. सो यू गॉट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए. एक 1 था आपके पास ऑलरेडी, एक cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ने आपको 1 दे दिया. ठीक है, सो आपको 2 मिल गया. 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए. ठीक है, जब आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए आया, आपने 2 कॉमन लिया, सो यू गॉट 1 प्लस साइन ए. दिस इज सेम एज व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो वो कट गया. तो आपके पास आ गया 2 बाय कॉस ए विच इज 2 sec a. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Let us do the third part now. This is tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta. This is equal to 1 plus sec theta cosec theta. And आपको बुक में ही हिंट दिया है that you need to write the expression in terms of sin and cos. So let us do that. So tan theta को हम लिख सकते हैं sin theta by cos theta divided by 1 minus cos theta by sin theta प्लस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा. ठीक है, अच्छा हम एलसीएम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में. sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. ठीक है, अब साइन थीटा और कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर्स में है नीचे वाले एक्सप्रेशन में, हम उनको ऊपर भेज देते हैं. बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस वुड बी इक्वल टू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, दिस वुड बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाय cos theta into sin theta minus cos theta plus cos square theta by sin theta into cos theta minus sin theta. ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया. अब आप देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब इसमें क्या है, माइनस का डिफरेंस है. तो अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा, अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ. अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा और वहां पे भी सेकंड टर्म में भी जो ये वाली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे भी मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दूंगा माइनस को कॉमन लेके. देन इन दैट केस आई विल बी एबल टू टेक एलसीएम. सो लेट अस डू दैट नाउ. तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू sin theta minus cos theta. Now, as I have sin theta minus cos theta in both the terms, I will take LCM. So now, this would be sin theta cos theta into sin theta minus cos theta divided by ऊपर आ जाएगा sin square theta into sin theta
cos square theta into cos theta, right? Now this would become sine cube theta minus cos cube theta divided by sine theta cos theta into sine theta minus cos theta. Now we know that a cube minus b cube, a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. You know this identity. Now we will apply it in the numerator. So we will get sine theta minus cos theta into sine square theta plus cos square theta plus sine theta cos theta divided by sine theta cos theta into 1 into sine theta minus cos theta. तो अभी देखो ये वाली जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल्स आउट विद दिस टर्म इन द न्यूमरेटर. ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा divided by sine theta cos theta. Now I have got this and I have to make it somewhere equal to 1 plus sec theta cosec theta. अब sec theta and cosec theta क्या होता है? They are the reciprocals of sine and cos. So if I take this expression as 1 by sine theta cos theta, ठीक है, 1 by sine theta cos theta plus sin theta cos theta divided by sin theta cos theta. मैंने अलग अलग कर दिया. हम कर सकते हैं ना, जब हमारा एलसीएम सेम होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, तो हम न्यूमरेटर्स में जब एडिशन होती है सब्ट्रैक्शन होती है हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं. मैंने अलग अलग दिया. यहाँ पे देखो आपका 1 1 आ गया. यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा अगर आप करो 1 बाय साइन थीटा तो ये आपका आ गया कोसेक थीटा. 1 बाय कॉस थीटा करो तो आपका ये आ गया सेक थीटा प्लस 1. तो दिस इज माई आर एच एस. Hence proved. I hope this is clear to you. Okay, the fourth one. 1 plus sec A divided by sec A is equal to sine square A by 1 minus cos A. Now, the question is saying to simplify both LHS and RHS separately. So, let's do it. Sec A को मैं cos A के टर्म्स में लिखूंगा. लिखते हैं 1 by 1 by cos A. नीचे भी लिख दूंगा 1 by cos A. ठीक है. So I will get cos A plus 1 by cos A into cos A. तो cos A कट जाएगा. So I will get cos A plus 1 in my LHS. ये मेरा LHS है. अब RHS को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो I have my sin square A by 1 minus cos A. Now you know that sin square A plus cos square A is equal to 1. So this can be written as 1 minus cos square A divided by 1 minus cos A. वही A square minus B square वाली आइडेंटिटी लगा देंगे. 1 minus cos A into 1 plus cos A divided by 1 minus cos A. 1 minus cos A, 1 minus cos A कट गया. So you get 1 plus cos A और cos A plus 1. This is your RHS. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड है. फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS. Hence proved. I hope this question is clear. काफी आसान क्वेश्चन था ये, nothing complicated in it. Let us do the fifth one now. Again, very important question. This came in the recent board attempt also. So this is cos A minus sin A plus 1 by cos A plus sin A minus 1. ठीक है. This is equal to cosec A plus cot A. Now you have to use the identity cosec square A is equal to 1 plus cot square A in this question. This is given to you in the question. आपको क्लियरली दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है. ठीक है. नाउ इस क्वेश्चन को करने का बहुत ट्रेडिशनल और बहुत एक सिंप्लीफाइड वे है. सो विल डू इट थ्रू दैट.
dividing both sides by sin A. Dividing both the sides by sin A. Cos A by sin A minus sin A by sin A plus 1 by sin A. ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नाउ that we have to use the identity cosec square A is equal to 1 plus cot square A. If I'm able to write the expression which has cos A sin A in terms of cosec A and cot A, then I'll be able to use the identity. And उस चीज को करने के लिए we will have to divide it by sin A. Because 1 by sin A is what? Cosec A. What is 1 by cos A? It is sec A. And what is cos A by sin A? It is cot A. ठीक है? Divided by cos A by sin A plus sin A by sin A minus 1 by sin A. So this would become cos A by sin A. Cot A हो जाएगा ये minus 1 plus cosec A आ गया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cot A plus 1 minus sin 1 minus 1 by sin A है. So this is minus cosec A. ठीक है? I hope this is clear to you now. Now, we have to use the identity. Using the identity, cosec square A is equal to 1 plus cot square A. ठीक है? अच्छा, अगर मैं देखूं यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? cot square A माइनस सॉरी cosec square A minus cot square A. Cosec square A minus cot square A. This is the value of 1. ठीक है? तो अब देखो, इसमें मैं अगर 1 की वैल्यू डाल दूं न्यूमरेटर में, तो मुझे क्या मिल रहा है? cot A प्लस cosec A माइनस cosec square A minus cot square A, right? Divided by cot A plus 1 minus cosec A. ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने 1 की जगह आइडेंटिटी डाल दी cosec square A minus cot square A. अब देखो, I can write it as cot A plus cosec A minus cosec square A minus cot square A को A square minus B square वाले आइडेंटिटी लगा के I can open it out. This would be cosec A minus cot A into cosec A plus cot A divided by cot A plus 1 minus cosec A. ठीक है? आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. नाउ यू सी कि बाहर भी cot A plus cosec A है और अंदर वाले एक्सप्रेशन में भी यू कैन सी cosec A plus cot A है. सो आप दोनों को कॉमन ले लो. cot A plus cosec A को मैंने कॉमन लिया तो आई विल हैव 1 माइनस cosec A माइनस cot A डिवाइडेड बाय cot A प्लस 1 माइनस cosec A. अब आप देखो, जो ये वाला एक्सप्रेशन है और जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये सेम है. इसको हम लिख भी देते हैं उसके टाइम टर्म्स में. cot A प्लस cosec A इंटू 1 माइनस cosec A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस cot A आ गया आपका डिवाइडेड बाय cot A प्लस 1 माइनस cosec A. बिल्कुल सेम आ गया आपका. ये काट दो. यू गेट cot A plus cosec A, which is your RHS, and hence you have proved it. So this was a good question. आपको उसको दिमाग में रखना है कि how you have to go about it. सबसे पहले आप sin से डिवाइड करोगे, पूरे एक्सप्रेशन को cot and cosec के टर्म्स में लेके आओगे. जब आपने वो काम कर दिया, ठीक है, then you will apply the identity cosec square A is equal to 1 plus cot square A. ठीक है, I hope it is clear to you.
अब नाउ यू वुड आस्क मी वन क्वेश्चन कि आपने साइन ए से ही क्यों डिवाइड किया, आप कॉस ए से डिवाइड कर देते। तो उस केस में आप देखो ना, साइन ए बाय कॉस ए आ जाता, तो दैट वुड बी टैन ए। कॉट नहीं आता, मुझे तो कॉट एंड कोसेक के टर्म्स में चाहिए था। सो द बेस्ट वुड हैव बीन टू डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, और किसी से मैं डिवाइड करता कुछ और आ जाता, कॉस से करता तो वन बाय कॉस सेक ए आ जाता, सेक ए तो चाहिए ही नहीं था, क्या चाहिए था आपको, सेक ए चाहिए था। ठीक है, नाउ गोइंग टू द सिक्स्थ पार्ट, 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a, ये अंडर रूट में, दिस इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ एज यू कैन सी एलएचएस में रूट में है, आप साइन ए के टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो आप आगे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, किसी और के टर्म्स में लिख भी नहीं सकते। सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस, इस केस में आप रैशनलाइज कर दोगे। जब आप रैशनलाइज करोगे, so this would become 1 + sin a into 1 + sin a divided by 1 - sin a, ये मेरा LHS है ऑन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ और कर ही नहीं सकता, सो इट इज माई लास्ट चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, माय बैड, 1 मिनट, मैं लिखने ही भूल गए। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया, 1 - sin a, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 1 + sin a होगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + sin a, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1² - sin² a² - b², a+b × a - b इज a² - b², राइट। सो ऊपर 1 + sin a होल स्क्वायर, एंड नीचे 1 - sin² क्या होता था, आई नो sin² a + cos² इज इक्वल टू 1, सो 1 - sin² वुड बी इक्वल टू cos²a। ये अंडर रूट में, अब देखो, अंडर रूट से सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी, 1 + sin a न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। नाउ मेरे को इसको किसकी इक्वल प्रूफ करना है, मुझे इसको इक्वल प्रूफ करना है सेक ए एंड टैन ए। ओ, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट आउट कर दूं, कॉस ए को 1 के साथ भी लिख दूं एंड साइन ए के साथ भी लिख दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। So this would be 1 by cos A is sec A plus sin A by cos A. This is equal to tan A. So hence proved. This is the solution to this question. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर दैट पहले आप रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। ठीक है, अंडर रूट में आप क्या करोगे, ऑलरेडी साइन एंड कॉस के टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी साइन के टर्म्स में है, आप कुछ कर नहीं सकते, देर इज नो आइडेंटिटी दैट इज एप्लीकेबल, तो इसलिए आप रैशनलाइज कर रहे हो। रैशनलाइज आपने किया तो आपके दो टर्म्स बाहर आ गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड देन यू सेपरेट इट आउट। ठीक है, द सेवेंथ वन नाउ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी, साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos³ थीटा माइनस कॉस थीटा बाय टैन थीटा। अब ध्यान से, अब देखो, अब न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, डिनोमिनेटर में आप कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो पहले। साइन थीटा, दिस वुड बी इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा, राइट। आपने कॉस थीटा को लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1। क्लियर। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो व्हाट इज योर इंटेंशन, द इंटेंशन मैटर्स, कि मुझे ये जो एक्स्ट्रा वाली टर्म है ना, इसको काटना है, मुझे जो एक्स्ट्रा वाली टर्म है इसको काटना है। अब इसको काटने के लिए मेरे को पता है कि यार साइन² थीटा है, कॉस² थीटा है, इससे रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी थी, साइन² थीटा प्लस कॉस² थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं 1 की जगह डाल सकता हूँ साइन² थीटा प्लस कॉस² थीटा, एब्सोल्युटली। साइन थीटा इंटू साइन² थीटा प्लस कॉस² थीटा माइनस 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 cos² थीटा माइनस साइन² थीटा माइनस कॉस² थीटा। तो क्या बन गया, टैन थीटा बन गया।
अब यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस वुड बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब नीचे देखो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कट गया, वेरी गुड, tan थीटा आ गया। दिस इज माई RHS, सो हैंस प्रूव्ड। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एंड नाउ इट कैन इवन कम इन MCQ। एट्थ पार्ट में आपकी काफी आइडेंटिटीज यूज होती हैं एक साथ। साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। नाउ यू नीड 7 इज अ चैलेंज टू गेट दिस 7, टू गेट tan स्क्वायर ए, टू गेट cot स्क्वायर ए, हम पूरा LHS खोल देंगे, खोलते हैं जी। तो दिस वुड बी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए सेक ए, ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 1 होता है। हम पहले ना साथ में लिख देते हैं, सी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन ए, कोसेक ए को कैसे लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए मैंने उधर लिख दिया, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज है ना दोनों, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख दो पहले 2 cos ए, सेक ए को लिख दो आप 1 बाय cos ए, यूजिंग द आइडेंटिटीज sec square a is equal to 1 plus tan square a and cosec square a is equal to 1 plus cot square a using these two identities, ठीक है। cos ए कट गया, sin ए कट गया, sin square a plus cos square a आपका आ गया 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका आ गया 2 प्लस 2 4, ओके, एक 1 मिसिंग है, प्लस 1 ये भी तो है, ये 1 आ गया मेरे पास, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। गड़बड़ की है क्या, 1 1 1 2 2, ओके, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं, हैव मिस्ड समवेयर क्या कुछ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस गेव अस 1 1, कोसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए, इन्होंने हमें 2 1s दिए, वो दो मैंने लिख दिए, एंड ये हमें 2 2 इन्होंने दिया, कुछ तो मिसिंग है, आई थिंक वी हैव मिस्ड 1 वर्ड, कुछ तो हमने मिस किया है। 2 2s तो हमारे पास आने थे, 2 1s भी आने थे, एंड एक 1 और, ओके, इसको ये हटाओ 1 मिनट। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, अब आ गया 7, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, दिस इज 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। नाइन्थ पार्ट इज कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू 1 बाय tan ए
प्लस कॉट ए, cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 by tan a plus cot a. क्वेश्चन आपको क्लियरली बता देता है, you have to simplify both LHS and RHS separately. Let us do it. क्या करेंगे हम? अपना फर्स्ट स्टेप पे फर्स्ट बेसिक रूल इज सबको साइन एंड कॉस के टर्म्स में लिख देंगे. लेट्स डू इट. cosec a को 1 by sin a माइनस sin a, sec a को 1 by cos a माइनस cos a, sin a 1 माइनस sin स्क्वायर a. एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, साइन ए कॉस ए. ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर ए. यूजिंग द आइडेंटिटीज साइन ए एंड सॉरी 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए, राइट. एक कॉस कट जाएगा और एक ऊपर साइन कट जाएगा. अब आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं. सॉरी, RHS is equal to 1 by tan A plus cot A. Tan and cot को sin and cos के टर्म्स में लिखते हैं. So this would be sin A by cos A. Cot को हम लिख सकते हैं cos A by sin A. LCM ले लो सिंपल, cos A sin A. So ऊपर चला जाएगा sin A, इसके ऊपर भी 1 है, प्लस cos square A. So this would be 1 by cos A sin A, which is equal to sin A cos A. Hence proved. I hope this question is clear. You have to clearly simplify both LHS and RHS separately, and आपका आंसर आ गया. So 1 आ गया, 2 आ गया from 1 and 2. LHS is equal to RHS. Hence proved. The last part of this question, that is the 10th part, 1 plus tan square A by 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan square, tan 1 minus tan A by 1 minus cot A whole square. This is equal to tan square A. You have to do it separately for all the parts. Let's do it. पहले 1 plus tan square A by 1 plus cot square A. So this would be 1 plus sin square A plus cot square A divided by 1 plus cos square A by sin square A. So this would be cos square A plus sin square A divided by cos square A, the entire thing divided by sin square A plus cos square A, LCM लिया है, divided by sin square A. So this becomes 1 by cos square A into sin square A by 1. Because of the identity, sin square A plus cos square is equal to 1. So sin square A divided by cos square A, this is equal to tan square A. I hope this is clear. Now ऐसे ही हम ये वाला जो सेकेंड एक्सप्रेशन है 1 माइनस tan A by 1 माइनस cot A होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे उसकी टर्म्स में. So 1 minus tan A by 1 minus cot A होल स्क्वायर. अच्छा, आप इस क्वेश्चन में देखो, आपको जो आरएचएस है उसमें ना साइन है ना उसमें कॉस है. तो इसको कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं. आपको रिलेशनशिप किस में निकालना है? टैन में निकालना है. तो आप कॉट ए को भी आप टैन में लिख सकते हो. सो दैट वुड मेक योर वर्क इजी. सो 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय टैन ए. So this would be 1 minus tan A divided by tan A minus 1 by tan A on taking LCM. अब यहाँ देखो 1 माइनस tan A है, डिनोमिनेटर में tan A माइनस 1 है. सो अगर tan A माइनस 1 को 1 माइनस tan A करना है तो मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा. तो 1 माइनस tan A
divided by 1 minus tan A on taking minus common into tan A. तो ये कट गया एंड ये पूरा स्क्वायर में है. सो यू हैव माइनस tan A लेफ्ट. इसका स्क्वायर, दिस वुड बी tan स्क्वायर A. ठीक है. सो दिस इज equal to your RHS, equal to your RHS, equal to your RHS. With this, we have completed our eighth chapter, that is Introduction to Trigonometry. The NCRT of this chapter is very important. You should thoroughly practice it, specifically the last exercise. Thank you so much.